Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Liz Bhatia Preschool online classes. Kids, today's date is 13th of August 2020 and day is Thursday. Hey kids, welcome to your class. Kids, as you all know that we start our class with English recitation. So kids, today we will recite an English rhyme, Baba Black Sheep. So kids, stand up on your place wherever you are and let's start this rhyme. Baba Black Sheep. Kids, repeat after me. Baba Black Sheep, have you any wool? Have you any wool? Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. 3 bags full. 3 bags full. 1 for my master. 1 for the dame. 1 for my master. 1 for the dame, and 1 for a little boy, and 1 for a little boy who lives down the lane. Who lives down the lane. Kids, let's repeat after me once again. Baba Black Sheep, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 bags full. 1 for my master, 1 for the dame, and 1 for a little boy who lives down the lane. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Thank you. Hey kids, let's start our English oral class. Kids, today we will learn alphabets A to Z. So let's start, kids. A. A says apple. Kids, what is this? A. A says apple. B. B says ball. C. C says cat. A says apple. B says ball. C says cat. D says dog. D says dog. E says egg. E says egg. A says apple. B says ball. C says cat. D says dog. And E says egg. F. F says fish. F. F says fish. G. G says grapes. G. G says grapes. Now H. H says horse. I. I says ice cream. I says ice cream. J. J says jug. F says fish. G says grapes. H says horse. I says ice cream. And J says jug. K. K says kite. L. L says lion. M. M says monkey. N says net. O says owl. K says kite. L says lion. M says monkey. N says net. O says owl. Now P. P says parrot. P says parrot. Q says queen. R says rabbit. S says sun. And T says tiger. P says parrot. Q says queen. R says rabbit. S says sun. And T says tiger. Now U. U says umbrella. U says umbrella. V says van. W says watch. X says Xmas tree. Y says yak. And Z says zebra. U says umbrella. V says van. W says watch. X says Xmas tree. Y says yak. And Z says zebra. Kids, learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is English written. Kids, take out your English notebook and open the page where I have done the setting of 13 August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of A, B, C, D, E, F. So kids, now we are going to learn to draw the formation of G. Today we are going to learn to draw the formation of G. G says grapes. So kids, let's start. Firstly, as you all know that we have to read this statement. So let's start. Make C holding a stick, make G. Make C holding a stick, make G. Make C holding a stick, make G. मीन्स बच्चों आपको क्या करना है, एक सी बनाना है, उसे एक स्टिक पकड़ा देनी है, तो वो क्या बन जाएगा, जी. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ.
make C, and as you all know that you have to touch the upper and bottom line both carefully. Holding a stick. Make G. Make C. Holding a stick. क्या बन गया बच्चों? G. G says grapes. Make C. Holding a stick. G. Make C. Holding a stick. G. Again. Make C. Holding a stick. G. Make C. Holding a stick. G. Make C. Holding a stick. Make G. 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 Kids, in the next page you have to do the same work. So kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So let's start one Hindi rhyme. Kids, open your rhyme book. Page number 30. इत्तवार. आज हम कौन सी पोएम पढ़ेंगे किड्स? आज हम पढ़ेंगे इत्तवार वाली पोएम. So kids, stand up in your place wherever you are, and I'm going to recite this poem, and you have to repeat after me with actions. So start kids. आज इत्तवार है. Kids, repeat after me. आज इत्तवार है. चूहे की बारात है. Repeat after me. आज इत्तवार है. चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे. लड्डू पेड़े खाएंगे. शादी में जाएंगे. लड्डू पेड़े खाएंगे. खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, repeat one more time. आज इत्तवार है. चूहे की बारात है. शादी में जाएंगे. लड्डू पेड़े खाएंगे. खूब मजे उड़ाएंगे. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and learn it more time. Thank you. Kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn A se Aha Swar with the help of your book Akshar Vatika. Kids, open page number 2. We will start स्वर आ से आहा. चलिए बच्चों, तो हम आज आ से आहा स्वर पढ़ेंगे अपनी बुक की हेल्प से. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपको अक्षर के साथ चित्र को भी पहचानना है. तो हमने आपसे अक्षर छुपाकर पूछा कि बच्चों ये कौन सा चित्र है, इसका पहला अक्षर क्या होगा, तो आपको उसका भी आंसर करना होगा. तो हम इन दोनों ही अक्षर और चित्र दोनों को ही अच्छे से पढ़ के याद रखेंगे. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. छोटे आ से अनार. ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटा अ. छोटे आ से अनार. बड़ा आ. बड़े आ से आम. छोटे आ से अनार. बड़े आ से आम. छोटे आ से अनार. पकड़ो डाल तोड़ो अनार. खाकर इसको बांटो प्यार. आ से अनार. बड़े आ से आम. आम फलों का राजा है. सबके मन को भाता है. बड़े आ से आम. अब पढ़ेंगे आगे दूसरा पेज टर्न करके. छोटी ई. छोटी से इमली. छोटी से इमली. ये कौन सा अक्षर है बच्चों? छोटी ई. छोटी से इमली. ई सी इमली खट्टी कितनी. मुन्ना को भाती इसकी चटनी. बड़ी ई. बड़ी से ईख. बच्चों कौन सा अक्षर है? बड़ी ई. बड़ी से ईख. गन्ने को सब कहते ईख. बच्चों सीखो अच्छी सीख. छोटा ऊ. छोटे ऊ से उल्लू. छोटे ऊ से उल्लू. दिन भर सोया रहता उल्लू. रात को जागा करता उल्लू. बच्चों छोटे ऊ से उल्लू. बड़ा ऊ. ये कौन सा अक्षर है बच्चों? बड़ा ऊ. बड़े ऊ से ऊन. बड़े ऊ से ऊन.
रंग बिरंगी प्यारी ऊन मम्मी मेरा स्वेटर बुन। अब ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये कौन है बच्चों? री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा, सदा ध्यान में रहते ऋषि, बांटे ज्ञान और देते खुशी। री से ऋषि बाबा। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 10। ए से एडी। बच्चों ये क्या है, कौन सा अक्षर है ये? ए से एड़ी। पैर के नीचे होती एड़ी, उचक उचक कर इमली तोड़ी। अब ये क्या, कौन सा अक्षर है बच्चों? ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। दादाजी जब ऐनक लगाएं तभी उनसे पढ़ा जाए। अब है ओ से ओखली। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओखली में माँ दाने डाले, कूट कर ही फिर उन्हें निकाले। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत, सारे जग की जननी औरत, ममता की है मूरत औरत। ओ से ओखली। अब ये कौन सा अक्षर है बच्चों? इस पे देखो मम्मा की बिंदी लगी हुई है। अंग से अंगूर है ये। अंग से अंगूर, हरे भरे रसीले अंगूर, पकड़ो ले दौड़े लंगूर। अंग से अंगूर। अब आहा अक्षर खाली। आहा अक्षर खाली, बच्चों बजाओ ताली। आ से हा हंसता बच्चा, आहा से हा हंसता बच्चा, भोला भाला मन का सच्चा। भोला भाला मन का सच्चा। आ से आहा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? आ से लेकर आहा तक पढ़ा है। तो चलिए आज हम इसे रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पीछे का पेज टर्न किया, पेज नंबर 40, और उसमें हम आ से लेकर आहा तक पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और आहा अक्षर खाली। बच्चों बजाओ ताली। Now kids, learn it well and recognize all objects well. Thank you. Hey kids, welcome to your next class, and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 13 August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class, we have learned to draw the formation of छोटा a to बड़ा u. मतलब हमने छोटा आ से लेके बड़े ऊ तक के सारे फॉर्मेशन कर लिए थे। अब हमें आज क्या करना है बच्चों? आज हमें यही सेम रिवाइज करना है। हमने छोटा आ बड़ा आ रिवाइज कर लिया था, तो आज हम क्या रिवाइज करेंगे बच्चों? छोटी से इमली और बड़ी से ईख। फॉर्मेशन की स्टेटमेंट आप सभी को बच्चों याद होगी, तो हम आज क्या बनाएंगे? छोटी से इमली और बड़ी से ईख का फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप बताइए छोटी ई का फॉर्मेशन क्या था? वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न टेल मेक हेड, और क्या बन जाता बच्चों? छोटी से इमली मेक वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल। टेल बच्चों इसको जो टर्न करेंगे उसी के अंदर से निकालेंगे, एंड देन मेक अ हेड। फिर क्या बन गया बच्चों? छोटी से इमली। और फिर बड़ी से ही तो आपको बनाना आता है बच्चों। छोटी सी इमली बनाकर उसके ऊपर सी बना देते हैं बच्चों। ये इसका क्राउन होता है, इससे पता चलता है कि ये बड़ी ई है। बड़ी ई से ईख। तो चलिए बच्चों अब हम फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम इसे और इजिली ड्रॉ कर सकें। लेट्स स्टार्ट। वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल एंड वन हेड। छोटी से इमली। अगेन वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल वन हेड। बच्चों हेड बनाना आप नहीं भूलेंगे। बिना हेड लगाए कोई भी अक्षर कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स अक्षर तभी पूरा होगा जब आप इसकी हेड भी प्रॉपर बनाएंगे। और बच्चों आप सबको तो पता ही है, आप सब लोग तो जानते हो कि हमें अपर लाइन बॉटम लाइन अच्छे से टच करके करना है। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट।
वन स्मॉल मैन मेक सीट टर्न एंड टेल वन हैट, छोटी से इमली। वन स्मॉल मैन मेक सीट टर्न एंड टेल वन हैट, छोटी से इमली। अगेन वन स्मॉल मैन मेक सीट टर्न एंड टेल वन हैट, छोटी से इमली। बच्चों छोटी से इमली वाला तो लाइन पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, बड़ी से ईक बनानी है। तो बड़ी से ईक का फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ी ई कैसे पता चलेगी, उसके ऊपर सी बनाकर हम उसे उसका क्राउन समझ लेंगे, मीन्स ये उसका क्राउन है। चलिए बच्चों फिर से स्टार्ट करते हैं। वन स्मॉल मैन मेक सीट टर्न एंड टेल वन हैट एंड क्राउन। आप इसे इजिली क्या बोल सकते हैं, मेक छोटी ईक एंड मेक सी, और क्या बन गया, बड़ी से ईक। वन स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल वन हैट मेक सी, बड़ी से ईक। मेक छोटी ईक एंड मेक सी, बड़ी से ईक बन गया बच्चों। अगेन मेक छोटी ईक एंड सी, क्या बन गया बच्चों, बड़ी से ईक। इस तरह से हमने अपना ये वाला वर्क कंप्लीट कर लिया। और सेम ही वर्क बच्चों आपको होमवर्क में यानी नेक्स्ट पेज में सेम वर्क करना है आपको। तो आपने क्लास वर्क में देख लिया कि आपको कैसे वर्क करना है, सेम आपको होमवर्क में भी करना है। तो बच्चों ये हमारा वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब आप इसे और अच्छे से वर्क करिएगा और रिवाइज करिएगा। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is maths written. Kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 13 August 2020 and day is Thursday. Kids, in our last class we have learned to draw the formation of 7 but we don't have to revise it. So kids, today we are going to revise the formation of 7. Kids, firstly, read this statement carefully. Sleeping, slanting, 7. Sleeping, slanting. बच्चों ये कौन सी लाइन है, स्लीपिंग लाइन एंड दिस वन है स्लैंटिंग। तो ये स्लीपिंग लाइन बनाई, स्लैंटिंग लाइन बनाई और क्या बन गया बच्चों, फॉर्मेशन 7 का बन गया। लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ। स्लीपिंग, स्लैंटिंग, 7. अगेन स्लीपिंग, स्लैंटिंग, नंबर 7. And kids, as you all know that we have to touch the upper and bottom line both carefully. Sleeping, slanting, number 7. Again, sleeping, slanting, number 7. 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 बच्चों आप ध्यान से देख रहे हैं ना, मैंने बॉटम लाइन से बाहर भी नहीं निकाला है और अपर लाइन से भी बाहर नहीं लिखा है। तो आपको भी सेम ही वर्क करना है। स्लीपिंग, स्लैंटिंग, नंबर 7. Okay? In the next page we have to do the same work. So now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, let's start our maths oral class. Kids, today we will learn the counting 1 to 20 with the help of a book. आपको सिर्फ इस काउंटिंग को पढ़ते जाना है जितना मैं पढ़ा रही हूँ विद ऑब्जेक्ट्स, मीन्स कि आपको ऑब्जेक्ट्स भी काउंट करने हैं। आपको बुक से नहीं पढ़ना है, आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ काउंट करने हैं ऑब्जेक्ट और मेरे साथ पढ़ते जाना है। सो किड्स, रिपीट आफ्टर मी। लेट्स स्टार्ट। 1 1 और साइकिल कितनी है बच्चों, 1 1 2 how many elephants are there, 2 1 2 so this is 2. then 3 ये कौन सा नंबर है बच्चों, 3 1 2 3. next 4 1 2 3 4 how many monkeys are there, there are 4 monkeys 1 2 3 4. तो ये कितना लिखा है बच्चों, 4. then 5 1 2 3 4 5 how many butterflies are there, there are 5 butterflies. now 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Then 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 0, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो किड्स हमने 10 तक की काउंटिंग पढ़ ली. अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 1, 1, 11. रिपीट आफ्टर मी किड्स. 1, 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And where is one more? This one. 1, 1, 11. 5 plus 5, 10. And then 1, 11. 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 1, 11 के बाद क्या आएगा बच्चों? 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 12. Now 1, 3, 13. 1, 3, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 3, 13. 1, 4, 14. 1, 4, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Now kids, 1, 5, 15. Look at this page kids. How many reds are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 1, 5, 15. Kids, these are penguins. So let's count. 1, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many penguins are there? There are 16 penguins. 1, 7, 17. 1, 7, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 7, 17. Now 1, 8, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 8, 18. Kids, 1, 9, 19. 1, 9, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So 1, 9, 19. Now how many horses are there? 2, 0, 20. लिखा तो है बच्चों 20. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 2, 0, 20. So how many horses are there? There are 20 horses. 2, 0, 20. So kids, learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is GK oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. So kids, we have to only learn today. So kids, take out your picture dictionary book and open the page number 8 and chapter number 4. Kids, today we are going to learn some vegetables. हमें क्या करना है बच्चों? आज कुछ वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है. वेजिटेबल्स तो आप सब जानते होंगे. वेजिटेबल किसे कहते हैं? सब्जियों का नाम को वेजिटेबल्स कहते हैं. आप बच्चों वेजिटेबल्स खाते हो? आप लोगों में से किसी को कोई वेजिटेबल्स पसंद होगी और किसी को कुछ वेजिटेबल्स पसंद है.
तो बच्चों आज हम उन्हीं वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी वेजिटेबल देखी होंगी, बट आज हम उनके नाम भी पढ़ेंगे और उनके साथ उनके पिक्चर को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट। किड्स, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं? गोभी। ये क्या है बच्चों? गोभी। आप लोगों में से कई बच्चों को गोभी पसंद होगी और कुछ बच्चों को गोभी बिल्कुल नहीं पसंद होगी। तो ये क्या है बच्चों? कॉलीफ्लावर। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स है ना बच्चों, ये वेजिटेबल्स हम सबको खानी चाहिए। उससे क्या होता है? हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट, सारे सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। सो किड्स, हमारे लिए वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वेजिटेबल्स आगे पढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होता है? गोभी। कॉलीफ्लावर। एंड दिस इज रेडिश। ये क्या है बच्चों? रेडिश। मूली। रेडिश। कॉलीफ्लावर। रेडिश। ये क्या है बच्चों? व्हाइट कलर की? रेडिश। इसकी लीव्स और इसकी ये रेडिश, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होती हैं खाने के लिए। और ये कैसे यूज होती है बच्चों? सैलेड के तौर पर भी यूज होती हैं। व्हाट इज दिस किड्स? टोमेटो। टोमेटो तो सबको पसंद होगा। ये क्या है बच्चों? टोमेटो। कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड टोमेटो। आप सभी टोमेटो सॉस खाते होंगे आप, और क्या नाम, टोमेटो का केचप भी खाते हैं। तो बच्चों, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, ये 3 वेजिटेबल आपने अच्छे से पहचान ली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? अनियन। ये क्या है बच्चों? अनियन। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन। ये क्या है बच्चों? अनियन। अच्छा बच्चों, ये आप सबकी फेवरेट वेजिटेबल है। मैं जानती हूँ आप सबका ये फेवरेट है। ये क्या है बच्चों? पोटैटो। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो। आलू। पोटैटो को क्या कहते हैं? आलू। इसके चिप्स भी बनते हैं, हम लोग चिप्स भी खाते हैं। तो ये क्या है? पोटैटो। व्हाट इज दिस किड्स? लेडी फिंगर। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर। ये क्या है बच्चों? भिंडी। लेडीज फिंगर। नेक्स्ट इज पीज। ये क्या है बच्चों? मटर। पीज। ये तो आपकी फेवरेट वेजिटेबल है। पोटैटो, पीज, टोमेटो, ये सारी देखिए आपको सब वेजिटेबल जितनी भी आपकी फेवरेट है सब यहीं पर मिल रही हैं। कॉलीफ्लावर। हमने कितनी वेजिटेबल्स पढ़ी बच्चों? रिपीट करते हैं चलिए। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर एंड पीज। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिंजल। ये क्या है बच्चों? बैंगन। ब्रिंजल। पंपकिन। कद्दू। देखो ये कितना बड़ा सा है। ये क्या है बच्चों? कद्दू। पंपकिन, ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शिमला मिर्च। कैप्सिकम, ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम। बच्चों नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे पूछेंगे ना, तो हम आपसे ऐसे पूछेंगे कि बच्चों बताइए कौन सी वेजिटेबल है, तो आपको इसका नाम करेक्टली बताना पड़ेगा कि ये क्या है? कॉलीफ्लावर। ये क्या है बच्चों? रेडिश। टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर, पीज। नेक्स्ट, ब्रिंजल। ये क्या है बच्चों? ब्रिंजल। पंपकिन, कैप्सिकम। ब्रिंजल, कैप्सिकम, पंपकिन, कैप्सिकम। नेक्स्ट, कैरेट। ये क्या बच्चों? कैरेट। कैरेट। आपने गाजर का हलवा खाया होगा। गाजर का हलवा किससे बनता है बच्चों? इसी कैरेट से बनता है। ये क्या है? कैरेट। और ये रैबिट को भी बहुत पसंद है। कैरेट आपको पता है रैबिट बहुत अच्छे से खाता है, उसको बहुत पसंद है। जैसे आपको पोटैटो पसंद है, किसी को पीस पसंद है, किसी को टोमेटो पसंद है, उसी तरह से कैरेट किसको पसंद है? रैबिट को बहुत ज्यादा पसंद है कैरेट। तो ये क्या है बच्चों? कैरेट। एंड दिस वन इज टर्निप। ये क्या है बच्चों? टर्निप। कॉलीफ्लावर, रेडिश, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, लेडीज फिंगर, पीस, ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम, कैरेट, टर्निप। बच्चों इस वेजिटेबल्स को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आप उसे उतने अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे विद इट्स नेम। तो आपको क्या करना है? इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है विद इट कलर, विद इट नेम। ओके किड्स? सो किड्स, लर्न इट वेल। थैंक यू।